Morning to all of you. I am Rajesh Kumar, science teacher of KLM International School, Pathankot. How are you all? I hope you are all doing well at your home. Okay. Today we will start topic pollination. We will discuss about a topic pollination of chapter sexual reproduction in flowering plant, class +2, subject biology. Okay. Now, in this particular video, we will discuss about pollination, types of pollination, and what are the various agents which perform pollination. Okay, हम particular इस chapter में pollination की study करेंगे और हम pollination की जो types हैं उनको देखेंगे और हम बीच में ये भी study करेंगे कि कौन कौन से agent हैं जिनके द्वारा pollination होती है, which are the agents which perform the pollination, which help to perform pollination. Okay, pollination is actually a process of transferring pollen grain from anther to stigma. Okay, anther is actually a part of male and stigma is a part of female. Anther produce pollen grain. Pollen grains are the male gamete, okay, like sperm in male. Okay, these pollen grains transfer from the anther to stigma. This particular process is called as pollination. Okay, next is types of pollination. Pollination is basically of two types. First is self pollination and second one is cross pollination. Okay, what do you mean by self pollination? If the transfer of anther grain, for example, this is a male part and this is a female part, the transfer of pollen grain from the male part to the female part. Okay, and this type of pollination is known as self pollination. Self pollination takes place within the same flower or between the two flowers of the same plant. Okay, self pollination takes place within the same flower or two flowers of the same plant. Cross pollination means, for example, one flower is here and second flower is there, like this. Okay, एक flower ये है, एक flower ये है. If the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower, this type of pollination is called as cross pollination. Okay, what do you know by cross pollination? A pollination in which the transfer of pollen grain from anther to stigma of the different flower of different plant, not on the same plant, different plant. Okay, okay, I repeat once again. देखो एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, दिस इज वन प्लांट, दिस इज द सेकंड प्लांट. ओके, अगर यहाँ से पोलन ग्रेन या इसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर एक दूसरे पे गिरते हैं तो इस तरह की जो पोलिनेशन होती है उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं. ओके, नाउ हियर इज द चार्ट. Okay, self pollination is again of two type, autogamy and heterogamy. Autogamy if the flower are same. अगर फ्लावर दोनों में इस मतलब देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या हमने डिस्कस किया है. सेल्फ पॉलिनेशन इज ए पॉलिनेशन इन विच द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, आइदर ऑन द इन सेम फ्लावर, आइदर ऑन द सेम प्लांट, टू फ्लावर. ओके, सेम प्लांट. तो ऑटोगामी मीन्स जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होगी और जिटोनोगामी जब डिफरेंट फ्लावर हो बट एक ही प्लांट हो. ओके, द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में जो टाइप्स आती है वो जीनोगैमी. Okay, xenogamy means the transfer of pollen grain from one flower of one plant to the other flower of the different plant. Okay, then the agents. Okay, मतलब जो pollination में help करे. देखो pollen grains are immobile. Immobile means pollen grain खुद तो चल नहीं सकते, इनके पाँव तो होते नहीं है कि ये खुद मूव करेंगे. तो इनको मूव कराने के लिए आपको एजेंसीज चाहिए, आपको एजेंट चाहिए जो इनको मूव करा सके. तो उन एजेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दीज एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज बायोटिक एंड अदर वन इज एबायोटिक. Okay, abiotic means non-living, biotic means living, like wind, air. Okay, water. Okay, water is also a mode of pollination. जो प्लांट नदी के किनारे में होते हैं या बेसिकली जो नालों के साइड में या फिर जो अदर जो वाटर स्ट्रीम्स हैं उनके साइड में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है वाटर एजेंट, मेन एजेंट होता है वाटर जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है. ठीक है, और सेकंड इज विंड, हवा की वजह से जो पॉलिनेशन होती है. द पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनियोफिली एंड द पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली. ओके, देन द बायोटिक एजेंसी. बायोटिक मीन्स लिविंग एजेंसी. ओके, फर्स्ट इज बाय इंसेक्ट. अगर इंसेक्ट्स उस पॉलिनेशन को कर रहे हैं, अगर वो पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स के द्वारा हो रही है उसको एंटोमोफिली बोला जाता है. एंटोमोफिली, एंटोमोफिली इज अ पॉलिनेशन इन विच इंसेक्ट्स कैन पॉलिनेट the pollen grain, help to pollinate the pollen grain from anther to stigma. Second, if the pollinating agent is bad, then this type of pollination is known as chiropterophilia या chiropterophilia. Okay, and if the snail is also an organism
मैलाकोफिली एंड बर्ड्स ऑर्निथोफिली। ओके, तो ये थे आपके एजेंट्स ओके, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में विंड और वाटर आता है, बायोटिक में आपका इंसेक्ट्स, बैट्स, स्नेल्स एंड बर्ड्स आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज दिस अगेन पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। Advantages and disadvantages of pollination. Okay, what are the advantages and disadvantages of pollination? देखो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, नॉट क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देखो सेल्फ पॉलिनेशन के जो फायदे हैं, व्हाट आर द सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगी, प्योर वैरायटीज आपको मिलेंगी। जो फादर जो मेल जो पेरेंट पार्ट प्लांट है उसी की तरह डॉटर प्लांट होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी इसमें। ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर केस में पोलन ग्रेन ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर एक दो पोलन ग्रेन तब भी काम, मतलब आपका काम हो जाएगा, मीन्स पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज जो है सेल्फ पॉलिनेशन में, इसमें चेंज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज। न्यू यूजफुल करेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस, मीन्स बहुत रेयर केस में नए करेक्टर आएंगे, जैसा फादर है वैसे ही जो जनरेशन होगी, जैसा पेरेंट प्लांट है, सॉरी पेरेंट फ्लावर है, वैसा ही जो है डॉटर फ्लावर आएगा, सेम प्लांट आएगा। बिकॉज पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड बनेगा, तो मतलब हम प्लांट भी बोल सकते हैं, फ्लावर भी बोल सकते हैं, डज नॉट मैटर। ओके, देन द विगोर और विटिलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेज एंड प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देखो बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो क्या होता है? देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मीन्स कोई नई चीज़ नहीं आएगी, और वी नो दैट इन्वायरमेंट्स आर चेंजिंग ईयर आफ्टर ईयर, इन्वायरमेंट कंटिन्यू बदल रहा है, तो इसलिए हमें ऐसे प्लांट चाहिए जो हर इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर ले। तो यहाँ पे जो है वेरिएशन चाहिए हमें। ओके, इम्यूनिटी सेम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, देखो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, इम्यूनिटी डिजीज डिक्रीजेस मीन्स चेंज नहीं आएगा ना उसमें, जैसा पेरेंट है, अब मान लो आज से 10 साल पहले का जो प्लांट है, या 20 साल पहले का प्लांट है, या 200 साल पहले का प्लांट है, वो वैसा ही आज भी होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। बट क्या इन्वायरमेंट सेम है? क्या इन्वायरमेंट में वेरिएशन आई? ओके, देन अडेप्टेबिलिटी टू चेंज्ड इन्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड, मीन्स देखो जो मैं आपको बेसिकली अडेप्टेशन और ये बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट चाहिए, सारे पॉइंट्स उन्हीं को कवर करते हैं। अडेप्टेबिलिटी मीन्स अडेप्टेशन नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट देयर इज नो अडेप्टेशन। ओके, वो चेंज नहीं करेगा, so that particular flower, that particular plant cannot tolerate this increased temperature, cannot tolerate the condition of global warming, cannot tolerate the other environmental factor. Okay, so these are the basically disadvantages of self pollination. I hope you understand the concept of pollination, types of pollination, and then the agents of pollination, advantages of and disadvantages of pollination. Okay, देखो मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। देखो मीडियम एक्चुअली बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में ही कंसिडर करेंगे, लेकिन नहीं, देखो मैं आई एम सम टाइप ऑफ डिफरेंट टीचर, मैं एक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टीचर, मैं अलग मेरा जो फिलॉसफी है, मेरा जो, देखो माई अप्रोच इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, मेरी जो अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर है। सीबीएसई बोलती है चाइल्ड सेंटर, बट वी नो दैट। ओके, बट आई एम मेन इंपॉर्टेंट इसकी मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, बट जो मैं पढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं इजीली पढ़ा सकता हूँ, जितने बेसिक्स में पढ़ा सकता हूँ, आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू दैट माई दीज प्रिंसिपल्स। ओके, दीज आर माई प्रिंसिपल्स, और मैं आपको दोनों में डिक्टेट करूँगा, जितना ईजी हो, जितना मुझे लो लेवल पे जाना पड़े मैं जाऊँगा, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अल्टीमेटली माई मोटिव इज़ टू अंडरस्टैंड you these things, you can understand these things easily. Okay, thank you and have a nice day. Meet you in the next video. Till then, stay safe, stay at home. Thank you.